Hello friends, I am Ketan Shah, your teacher for manufacturing technology. First of all, welcome to semester 5th. Okay, now I am giving you some overview of this subject. There are 5 chapters that we have to go through during this semester. Chapter number 1, that is introduction about manufacturing, that we will discuss today in this lecture. Chapter number 2, that is foundry technology. That chapter is divided in two groups. Group 1 is pattern practice, that means process before doing casting. Then third chapter is metal joining process, and mainly we will discuss welding practices, different types of welding and their advantages, disadvantages and defects in the welding. Chapter number 4 is forming and shaping processes. In this chapter, mainly we will go through hot and cold working forging. Then the next one is the plastic technology, and last chapter is advanced super finishing technology, that is lapping, honing and buffing. So this is the detailed syllabus of your manufacturing technology. Majority of you that we have gone through in the last semester, that is in semester number 4, this manufacturing technology or manufacturing processes that we have gone through in the last semester. So now again we are repeating the same thing. My question is, what is manufacturing? Or there is a question, how we can define manufacturing? Then the definition of manufacturing is when we are applying any process on any input material, and if there is a change in shape or size in that material or any properties of that material, then we can say it's a manufacturing. Here, manufacturing is the processing of raw material or parts into finished goods through the use of tools, human labor, machinery, and chemical processing. Remember one thing, that it is not mandatory that by doing any process we are getting the finished outputs. There may be a number of processes to get the finished outputs. For example, say we have to go through the shaping process, the drilling process, the turning process, heat treatment process, finishing process, and so on. And finally, we will get the finished products. That is what we want. We can say that by doing any process on input material so that we can have a change in shape or size or any property of material and have an output is known as manufacturing. Now, again the one more question, that is, have you seen any manufacturing? That is also we have discussed in last semester. Very simple answer, that don't think so much. Our home kitchen is a manufacturing unit where we are making roti, dal, chapati, rice, tea, coffee, etc. Okay. From the whole wheat to flour, that is crushing process or a grinding process. Making roti on plate, that is the rolling process. Heating on stove or gas, that is heat treatments. So these all processes that we have gone through on the daily basis at our home. आपने वो भी देखा होगा, जैसे गन्ने का जूस निकलता है, that is also manufacturing by the process of rolling. Clear? Okay. Now we have a question, that what is the importance of manufacturing? Why we have to go for the manufacturing? से आज से 50, 100, 200, 500 साल पहले की बात है, या फिर हम बात करें कि भाई 100 साल पहले, तो वी डोंट हैव एनी मोबाइल फ़ोन्स. सो मोबाइल फ़ोन नहीं था, हम क्या करते थे, कोई मैसेज देना है, देन वी हैव टू यूज़ द पोस्ट डिपार्टमेंट, and
वो एक आज आपने पोस्ट डाला है, हो सकता है 2 3 4 दिन में वो आपको जहाँ पे पहुँचाना है वो पहुँचता था। सो आपका काम थोड़ा डिले होता था। नाउ देर इज़ ए मोबाइल फ़ोन। आपको किसी को मुंबई में या मद्रास में या कहीं पे भी कुछ काम है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकंड्स you can contact them that person and get the information or give the information. So क्या होता है, आपका एफर्ट, अब लेटर लिखना है, इट विल टेक सम 5 minutes 10 minutes, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, इन फ्यू सेकंड्स यू आर गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन। तो आपको ह्यूमन एफर्ट जो है वो आपको उसमें कम लगता है। काम का एक्यूरेसी, आपने कुछ लिख के उसको दिया है, वो क्या समझेंगे, आपका लिखने का मतलब क्या समझेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट आप वर्बली उससे बात करते हैं तो आप क्लियर कट आपका इंटेंशन आप उसको समझा सकते हैं, दैट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। या फिर आप कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ करते हैं, मैन्युअली करते हैं विदाउट हेल्प गेटिंग द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हो सकता है उसको में अच्छा आंसर, आपको सच्चा आंसर नहीं मिल सकता है। देन बाय यूजिंग द कैलकुलेटर यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो इट इज गिविंग द एक्यूरेसी इन द वर्क, रिड्यूसिंग टाइम ऑफ वर्क। जैसे मान लो कि भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, बिफोर 200 years 300 years 4 years, मान लो कि आपके पास कोई बाइक नहीं था, मोटर कार नहीं थी, देन व्हाट हैपन, यू हैव टू यूज सम अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो वो आपको यहाँ से मुंबई जा अहमदाबाद से मुंबई जाना है, इट में टेक, मान उस ज़माने में कि मान लो 2 दिन 3 दिन लगता था, अभी आप बाय एयरक्राफ्ट यू कैन रीच मुंबई विद इन हाफ एन आवर बाय द एरोप्लेन। सो इट इज़ रिड्यूसेस वर्क, सेव टाइम, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, आपको थकान कम कम होगी, देन यू विल गेट द मोर वर्क। सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का क्या है कि आपको काम इजी बनाना पड़ेगा। इजी कैसे बनाएंगे, आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा आपका टेक्नोलॉजी का यूज़। अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ मैक्सिमाइज करेंगे देन एंड देन यू कैन रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट कम होगा तो उसको थकान कम लगेगी, मतलब स्ट्रेस कम होगी, तो आपको वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देंगे। एंड अल्टीमेटली ये सब होने के कारण आपका काम का कॉस्ट है वो बहुत कम होता है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। नाउ हाउ वी कैन क्लासीफाई द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो मेनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज क्लासीफाई in 5 different groups. Number 1 is the casting, second one is the forming, third one is the machining, fourth one is joining, and last one, that is fifth one, that is finishing. In detail, कास्टिंग, हम नेक्स्ट चैप्टर में कास्टिंग के ऊपर बात करेंगे। दैट इज, एक लाइन में आप उसको कास्टिंग को डिफाइन करें तो देर इज ए बर्थ ऑफ मटेरियल और ए जनरेशन ऑफ मटेरियल। व्हाट इज कास्टिंग प्रोसेस, आपको जो मटेरियल का कास्ट करना है दैट मटेरियल यू टू गेट इन द स्क्रैप मोड, देन यू हैव टू मेल्ट दैट। मेल्ट मीन्स कि आपको कोई भी मटेरियल का जो कास्टिंग बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको एल्यूमिनियम का कास्टिंग बनाना है, देन आपको एल्यूमिनियम का स्क्रैप कलेक्ट करके उसको मेल्ट करना पड़ेगा। कौन से टेम्परेचर पे, तो एल्यूमिनियम का जो भी मेल्टिंग टेम्परेचर है उसके ऊपर आपको उसको मेल्ट करना पड़ेगा। और वो मेल्ट करने के बाद आपको उसको पैटर्न बनाया हुआ है, मोल्ड बनाया हुआ है, वो मोल्ड में आपको उसको पोर करने का। पोर करने के बाद आपको उसको सॉलिडिफाई होना पड़ेगा। तो रूम टेम्परेचर पे जो भी अलग अलग मेटल है तो अलग अलग टाइम के लिए उसको आपको सॉलिडिफाई या फ्रीजिंग करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर यू विल गेट द कास्टिंग ऑफ द शेप ऑफ पैटर्न। दिस इज द सिंपल कास्टिंग प्रोसेस। और इन अदर वर्ड मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में फ्रिज होता है, हम उसमें आइस क्यूब बनाते हैं। आइस क्यूब कैसे बनता है, तो हमारे पास एक आइस का ट्रे है, उसमें खड्डे होते हैं, वी कैन कॉल इन टेक्निकल वर्ड्स इट इज़ कैविटी। वो कैविटी में हम पानी डालते हैं, देन अगेन हम फ्रीज़र में उसको रखते हैं। थोड़े समय के बाद वो पानी का सॉलिडिफाई होके आइस क्यूब बनता है। द सेम प्रोसेस इज देयर इन द कास्टिंग। क्लियर? इन डिटेल हम ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में कास्टिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉर्मिंग, फॉर्मिंग इज ए शेपिंग
बाय हॉट और कोल्ड वर्किंग। आपने जो भी कास्ट किया है आप उसको हॉट मतलब फिर से गर्म करके, कौन से टेम्परेचर पे गर्म पड़ेगा करना पड़ेगा? नॉट ऑन द मेल्टिंग टेम्परेचर बट ऑन द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सो दैट आप उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करेंगे, देन यू कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ दैट मटेरियल। तो आप उसमें रिशेप करते हो। जो आपके पास कास्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 मिलीमीटर बाय 1000 मिलीमीटर बाय 1000 मिलीमीटर का एक कास्ट का मटेरियल है। नाउ आपको उसमें से विदाउट आपको डूइंग एनी और मेकिंग एनी स्क्रैप, आपको 100 mm 1000 mm जो उसका लेंथ है वो सेम रखना है, लेकिन हाइट एंड विड्थ 1000 मिलीमीटर के बदले आपको 100 मिलीमीटर का करना है। क्या करेंगे आप? व्हाट मटेरियल यू आर डूइंग दैट प्रोसेस, वो मटेरियल के बेसिस के ऊपर आपको प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे। कौन सा प्रोसेस है? आइदर हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग। फॉर एग्जांपल आपको एल्यूमिनियम का कास्टिंग है, देन उसको हॉट करने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युअली वाई विद द यूज ऑफ प्रेस आप उसको कोल्ड वर्किंग करके आपका डिज़ायर शेप और साइज ला सकते हैं। बट very important that in forming operation cheap generation is not there. That means before doing this forming operation, if the weight of workpiece is x and after doing this forming weight of that material or workpiece remains x only, that means there is no generation of any scrap. Now, the third is the machining. Here in machining, we are doing the hot or cold process, but in that machining, there is a generation of scrap. For example, on lathe machine, we are turning the job. On shaper machine, we are removing the height or reducing the height. On milling operation, we are making gears. On drilling operations, we are making some drill holes. So these all are the machining operations. But what happened after doing that machining? There is a generation of scrap. That means before doing that machining process, if the weight of that workpiece is x and after doing machining process weight is reduced from x to x minus delta x, this is machining process. Next one is the joining. Joining means there is a joining of two or more same or different material, दो पीस को या दो से ज़्यादा पीस को, सेम मटेरियल को या अलग अलग मटेरियल को आप उसको जॉइनिंग करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और स्क्रूइंग, बोल्टिंग, एडेसिव जॉइनिंग, उससे आप जॉइनिंग करते हैं। ये भी आपको हम आगे पढ़ने में आएगा वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के वेल्डिंग प्रैक्टिसेस में, आप हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिनिशिंग, दैट इज़ द रिमूविंग द मटेरियल, मतलब आपने कुछ काम मशीनिंग किया है लेकिन उसके ऊपर थोड़ा बर्स रह गया है या फिर सरफेस फिनिश आपकी रिक्वायर्ड नहीं है, देन व्हाट यू हैव टू गो फॉर, यू हैव टू पॉलिश दैट मटेरियल। उसमें भी स्क्रैप जनरेट होता है बट वेरी वेरी निग्लिजिबल, और वी हैव टू निग्लेक्ट दैट स्क्रैप लॉस। बराबर? तो दिस आर द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दैट वी हैव डिस्कस। Now, on what basis we can select the manufacturing processes? नंबर वन, वॉल्यूम ऑफ वर्क। आपको कितना वर्क पीस का काम करना है? आपको एक दो पीस बनाना है, देन यू हैव टू गो फॉर द सर्टेन प्रोसेस। बट आपको मास प्रोडक्शन करना है, यू हैव टू चेंज द प्रोसेस। टाइप ऑफ वर्क, कैसा काम करना है? हैवी ड्यूटी वर्क है, छोटा सा काम है, बराबर? तो वो हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिलेक्ट करना है। काम का प्रिसीजन आपको कितना चाहिए, उसमें आपका प्रिसीजन मीन्स कि एक्यूरेसी कितनी चाहिए, वो हिसाब से भी आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज करने का होता है। आपके पास कौन किस टाइप के मैन पावर है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, आपके पास मशीन कैसे है, वो हिसाब से भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। Now, there are a few questions. In my all lectures, at the end of my presentation, there is last slide of the questions. And the answers are there in my previous slides. Here in chapter number 1, there are 4 questions. Number 1, define manufacturing. 2,
state the importance of manufacturing. Third one, classify manufacturing processes. And fourth one is on what basis we can select the manufacturing process. Clear? Thank you.